Hello students, this is Maths class 5, chapter number 6, Be My Multiple, I'll be your factor. Now in this chapter we are going to study about multiples and factors. So let's start the chapter. The mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. एक hungry cat है, this here, she is trying to catch this mouse. And what is the name of this mouse? Kunjan. Okay, the mouse name is Kunjan. Now they are saying Kunjan is now on the 14th step. Kunjan कहाँ है? 14th step. This in my book this numbers are printed wrong. Okay, they are of another language, but we can write here numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. You can write all the numbers till 29 here by yourself. Okay. So now the Kunjan mouse is on 14th step and it can jump 2 steps at a time, and in one jump he can jump 2 steps like this. 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, like this he can go till here. Okay, 28. Now next is the cat is on the 3rd step. The cat is on the 3rd step and she can jump 3 steps at a time, and she can jump 3 steps at a time, means from 3, which number will come after one jump? 6, because 1, 2 and 3 she can jump 3 steps, so 1, 2 and 3 here. Now they are saying if the mouse reaches 28, it can hide in the hole. If this mouse can reach at 28, he can easily go in the hole. Okay, so to reach the hole he have to run here. Now find out whether the mouse can get away safely. अब हमें ये फाइंड करना है कि माउस चुपचाप बच के निकल पाएगा या नहीं. So let's answer these questions. The step on which the mouse jumps. अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिस पे माउस जो है वो जंप कर सकता है. तो वो हम 14 के बाद देखेंगे. So after 14, 16. Okay, so let's write the answer here. 16, 18, 20 काउंट ऑफ 2, यानी कि 2 की टेबल के काउंट के हिसाब से हम आगे तक 28 तक स्टेप लिखेंगे, क्योंकि 28 के बाद जब हम एक स्टेप और लेगा ये कुंजन, सो ही विल डायरेक्टली गो इनटू द होल. सो 20, 22, 24, 26, 28. These are the numbers that he will jump on. Now next is the step on which the cat jumps. Now we will start from 3. We will not count 3 but from 6. So 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. So these are the steps on which they will both jump. Now the step on which both the cat and the mouse jump. अब हमें ये बतानी है कि ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जिन पे दोनों ने साथ में जंप किया है, या दोनों उस पे आए हैं बारी बारी, चाहे एक साथ आए हो चाहे आगे पीछे आए हो. लेट्स सी. यहाँ पे ये इसकी स्टेप्स है कुंजन की और ये कैट की स्टेप्स हैं. तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स हैं, जो दोनों में नंबर आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो वो नंबर कौन से हैं? 18 and 24th step. ये दो हैं जो जिन पे the mouse Kunjan and the cat will jump. Now can the mouse get away? क्या चूहा बच के निकल पाएगा? Yes, he will get away. हाँ, वो बच के निकल जाएगा. ओके, बिकॉज
he is on 14, so when he will come here, देखो वो भले स्टेप्स जल्दी ले रहा है उससे, लेकिन ये 27 पे आएगी जब वो 28 पे पहुंच चुका होगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 स्टेप्स ही ले पाएगी, ये 8 स्टेप्स में जल्दी से आगे निकल जाएगा, सो वो बच के भाग जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट। वन मोर थिंग इज देयर, this question full from here to here, I had written it in the copy, you know, I had sent the answers in your WhatsApp group, I hope you had checked it, तो उसमें मैंने ये question लिखवाया है, so you can also see it in your copy. Now this question is also we are going to write in our copy. If the cat, okay, we have to find it out. If the cat starts from the 5th step, अगर cat 5th step से चलना शुरू करती है and jumps 5 steps at a time, और 5 steps at a time जाती है, and the mouse starts from 8th step, और mouse जो है ये कुंजन, ये 8 स्टेप से चलना शुरू करता है and jumps 4 steps at a time, और ये 4 steps एक बार में कवर करता है। Can the mouse get away? तब क्या माउस भाग पाएगा? So let's see it here. Mouse jumps on how many numbers? Check. 12, 16. Okay. 12, 16, 20, 24, 28, 30. Done. Now cat jumps on 10, 15, 20, 25, 30. किसके स्टेप्स कम हैं और इसके स्टेप्स भी ज़्यादा हैं और ये कम टाइम्स में भी जंप करेगी। 1 2 3 4 5 टाइम्स में ये आगे हो जाएगी, और इसके स्टेप्स भी 5 हैं, और माउस के स्टेप्स कितने हैं? 4 हैं, और उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो सो द माउस विल बी कॉट बाय द कैट ऑन 20 स्टेप। अब 20 स्टेप पे कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम पे आएंगे ना, ऐसा। और कुड बी कैच ऑन 30, ठीक है। अगर वो यहाँ से बच के निकल जाता तो वो यहाँ पे भी कैच हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, टर्न द पेज प्लीज। हु इज मोंटो वेटिंग फॉर? अब यहाँ पे देयर इज दिस क्वेश्चन, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर? मोंटो यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रहा है? मोंटो कैट इज़ वेटिंग, मोंटो कैट का नाम है, ओके, जो पीछे पेज पे था। सो मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो कैट जो है वो किसी के लिए वेट कर रहा है, ओके। एंड यू नो फॉर whom ही इज़ वेटिंग? आपको पता है कि वो किसके लिए वेट कर रहा है? There is a trick to find out. यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let me explain. So we will read from here. Here, mark with a red dot all the numbers which can be divided by 2. Okay. So when you will mark it, we will mark it with red. So what are the numbers that are divided by 2? 1, like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 32, 42. Don't darken it, okay? Slowly like this. When you will do, you will get all the numbers that are divisible by 2. Divisible by 2 मतलब 2 की टेबल में आने चाहिए। So we had marked all the numbers with a red dot. Similarly, you have to mark a yellow dot on the numbers which can be divided by 3 and blue dot on the numbers which can be divided by 4. So yellow color for divided by 3. So 3, then 6, then 9, 12, like this you do, okay.
I am just doing this to show you, and after that you have to do with blue dot on divisible by 4. So 4, 8, 12. Okay, then 16, 20, like this. Now you check here 12. 12 is a number which has all three colors. Okay, yellow, blue and red, all three colors are here on this number. So which are the boxes have dots of all three colors? Now the boxes which have all three colors, जिन पे ये तीनों कलर्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. और वो नंबर्स कौन कौन से होंगे? नंबर this. Okay, these are the numbers that are going to have all three dots. So what are the letters on the top of those boxes? अब इनके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसके ऊपर M, O, U, S, E. So write those letters below in order. जैसे इन पे लाइन से ये टिक है, उसी तरह लाइन से हमको इसको इसमें बॉक्स में लिखना है. सो M, O, U, S, E. What becomes it? Mouse. तो मोंटो कैट किसके लिए वेट कर रहा था? माउस के लिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हियर म्याऊ गेम. There is a game all these children are playing. They are sitting in a circle and they are playing a game. What is to play this game? Everyone stands in a circle. इस गेम को खेलने के लिए सबको सर्कल में खड़े होना पड़ेगा. One player call out 1. एक प्लेयर 1 बोलेगा, नेक्स्ट प्लेयर विल से 2 एंड सो ऑन. सब ऐसे करके 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर बोलते जाएंगे. All player who has to call out 3 and a number which can be divided by 3 has to say meow instead of the number. अब वो ये कह रहा है कि जिसके भी पास जो भी नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि 3 की टेबल में आते हैं और 3 से डिवाइड भी हो जाते हैं, वो नंबर्स को हमें नंबर नहीं बोलना है, उसकी जगह हमें बोलना है म्याऊ. जैसे कि इसने बोला 1, 2 म्याऊ, 3, 4 म्याऊ, 5, 3, 4 ऐसे 5 म्याऊ, फिर 7, 8 म्याऊ, 9, 10 म्याऊ. ऐसे इन लोगों को ये गेम खेलना है. सो ये गेम आप लोग भी खेल सकते हैं. यू कैन प्ले विथ एनी नंबर मल्टीपल. ओके, इट कैन बी 1, 2, 3, 4 एनी except 1. Now here the last player left with will be the winner here. Whoever forgets to say meow, one who forgets to say meow is out of the game. जो म्याऊ नहीं बोलेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा. और उसके बाद जो लास्ट में एक व्यक्ति बचेगा वो विनर होगा. विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ? अब हमने कौन कौन से नंबर्स रिप्लेस किए हैं? 9, 3, 6, 9 मीन्स 3 की टेबल लिखेंगे अब यहाँ पे. 3, 6, 9, 3, 4 12, 3, 5 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 3, 9, 27, 3, 10, 30, like this, so on. It will go long. So we say these numbers are the multiple of 3. तो ये जो numbers हमने बोले हैं ये क्या है? मल्टीपल हैं 3 के. आप जब आप इसको सुनोगे तो ये सुनने में भी बहुत एक जैसा लगेगा. अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाली टेबल होती है. मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड मल्टीपल्स आर द सेम. ओके, नाम भी सेम है तो आपको इजीली याद रहेगा कि अगर मल्टीपल्स बोलें तो आपको वो जो भी नंबर दिया है उसकी टेबल लिखना है. नाउ प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4. अब आपको यही गेम 4 के साथ खेलना है. नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ? अब हमने कौन कौन से नंबर्स हैं जो म्याऊ से रिप्लेस किए हैं? सो इट इज़ 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. ओके,
These are the multiple of 4. Now write any 10 multiples of 5. अब हमें यहाँ पे कोई से भी 5 के 10 multiples लिखने हैं. So we will start with 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. These are the 10 multiples of number 5. Understand? Now turn the page and here is a dice game. Now in this dice game what we are going to do? Throw 2 dice together. हमें 2 dice को साथ में फेंकना है. Now what are the numbers that turn up on the face of the dice? अब जब हमने फेंके तो उसके डाइस के जो ऊपर वाला फेस है उस पर कौन कौन से नंबर आए, जैसे कि इस वाले में 1 और 4 आया है. ठीक है. लाइक दिस मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम. अब हमें इससे इन दोनों को मिला के एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, वो है 14. ओके. इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल यू कैन राइट इट इन द सर्कल. नाउ अब ये जो नंबर है वो इनमें से किसी का भी मल्टीपल है तो हम उस सर्कल के अंदर लिख देंगे. जैसे हमने इसको देख के 1 और 4 है तो 1 4 मिलके क्या बन गया 14. 14 6 4 5 7 में से किसी का मल्टीपल है इन चारों नंबर्स की टेबल में आता है. यस आता है. किसकी टेबल में? 7 की टेबल में. तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट दिस 14 इन दिस सर्कल नेक्स्ट टू 7. 7 के पास जो सर्कल है हम उसमें 14 लिख देंगे. लाइक दिस देन नेक्स्ट टाइम वी विल थ्रो इट. जब हम इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे थ्रो करेंगे, इफ़ द नंबर इज ऑन दिस इट इज़ 2 एंड ऑन दिस इट इज़ 4, दैट मीन्स 24. 24 किसकी टेबल में आता है? यहाँ पे 6 की टेबल में आता है 24. यू चेक. येस. एंड 4 की टेबल में आता है. येस. सो व्हाट वी विल डू, हम दोनों में ही 24 को लिख देंगे. अंडरस्टैंड? लाइक दिस वी हैव टू डू विथ इन 10 राउंड्स वॉट एवर द नंबर कम्स. हमें 10 बार इसको फेंकना है और हमें लिखना है कि कौन कौन से नंबर हैं और हमें इनमें वो नंबर लिखना है. सो दिस इज़ योर गेम. नाउ इफ़ आई हैव 3 and 2 on my dice, if I make 23, it is not that multiple of any of the numbers, so I will make 32. अगर कभी ऐसा कोई नंबर आता है जो इन चारों का मल्टीपल नहीं है तो आप इनके नंबर आगे पीछे कर सकते हैं. जैसे कि ये है 1 और 4 आया तो मैं इसको 41 बना सकती थी, पर 41 इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है तो मैंने उसको क्या कर दिया 14 कर दिया, जो कि 7 का मल्टीपल होता है. So like this you can interchange the numbers to make a positive number which will come in this. Positive number मतलब जो इनमें से किसी एक में आ जाए ऐसा कोई नंबर. Okay. So I will make it 32 which is the multiple of 4 and write it in the red circle. क्योंकि 32 अब 4 का मल्टीपल होता है तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे. Like this you have to find and fill it. This is a work should be done by you and it is your homework. Now moving on to the next, common multiples. अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं. कॉमन मतलब आप लोगों को पता है, कॉमन मतलब जो सबके पास होती है चीज़ या जो सबके पास है, जो सब में है. ठीक है. सो कॉमन मल्टीपल्स. अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ये कभी एक नंबर में फाइंड नहीं कर सकते. जैसे कि अगर 5 अकेला लिखा है और आपसे पूछो 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है तो वो फाइंड नहीं कर सकते. कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर्स होने ज़रूरी होते हैं. सो वेन एवर इट विल कम इन 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और 4 नंबर्स. ओके. वी हैव टू डू इट विथ डिफरेंट नंबर्स. नाउ लेट्स सी इट हियर 3 and 5. अब आपको पता है 3 का मल्टीपल कौन सा है और 5 का मल्टीपल कौन सा है. तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे हमें लिखने हैं. अब 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21,
हमने 30 तक लिखे. ओके, वी आर नॉट राइटिंग मोर देन दैट. एंड हियर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. These are sufficient. इस अब इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है पहले हमें ये देखना है. The 3 is a smaller one. So now what we will do in this, that 3 is smaller, so we will check what is the highest number that we had written here. क्योंकि 3 छोटा नंबर है तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट नंबर हमने क्या लिखा है. इट इज़ 30. तो हम यहाँ पे 30 से एक नंबर ही ज़्यादा लेंगे. हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर 30 के आगे हम यहाँ पे भले ही कितने भी नंबर लिखते हैं वो इसमें मैच हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने यही नंबर लिखे. सो वी डोंट नीड टू एक्सटेंड इट टू अदर नंबर्स आफ्टर दिस. नाउ डू यू सी एनी कॉमन नंबर्स इन बोथ ऑफ देम. यहाँ पे आपको ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो दोनों में हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं. हाँ, आई कैन सी दैट एंड आई नो यू कैन ऑल्सो. दैट इज़ 15 एंड 30. ये दोनों में आ रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या है 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल है जो कि हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे 15, 30. सो जब हम इसको बीच में लिख रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, इस साइड का जो नंबर है उसमें से इरेज कर देंगे. फिर जो नंबर कॉमन होते हैं हम उसे सेंटर में लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो ये मैंने इरेज कर दिया. जब आप लिखेंगे तो आपको भी जो कॉमन नंबर्स हैं उन्हें यहाँ पे लिखेंगे, हम इसमें नहीं लिखेंगे. ओके, गॉट इट. नाउ विथ द सेम I had given some questions to you in your fair copy. Let's see that. Look, here I had given you write first 5 multiples of given numbers. इनके first 5 multiples लिखते हैं. पहले 5 मतलब स्टार्टिंग की टेबल के 5. तो for 6, 12, 18, 24, 30. 12 के लिए 12 की टेबल के पहले 5 नंबर. Like this we had written it. If it comes when anybody asks you to tell, so you can write the first 5 numbers. हो सकता है, remember this, हो नहीं सकता, मैथ्स है, ऐसा ही होता है. आपको कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 5 नंबर मैंने कॉपी में लिखवाए हैं तो कोई अगर टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं या हम आपसे कभी और ओरली भी पूछते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम यही नंबर देंगे. कुछ भी नंबर हो सकता है, आप लोगों को आंसर लिखना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैम आपने लिखवाया नहीं था तो ये नंबर आप क्यों पूछ रहे हो. मैथ्स है, नंबर्स हमेशा चेंज होके ही आएंगे और हो सकता है कि हम अलग नंबर दे दें, ये दे ही ना. ठीक है, सो यू हैव टू डू द आंसर्स एट दैट मोमेंट. जब भी आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे आपको देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं आ रहा है मैम या आपने नहीं करवाया है, लाइक दैट. सो रिमेंबर दिस. क्वेश्चंस कोई भी हो, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस भी हुए तो भी नंबर चेंज हो सकते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फर्स्ट 2. हमें सिर्फ इसमें पहले 2 ढूंढने हैं. पहले 2 इसलिए क्योंकि मल्टीपल्स तो बहुत सारे होते हैं और कॉमन देखने जाएंगे भी तो बहुत निकल आएंगे. सो इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है चॉइस फर्स्ट 2. सिर्फ हमें तब तक निकालना है जब तक पहले 2 ना निकल जाए. सो हम ये मैंने आपको समझाने के लिए इसमें किया हुआ है. ठीक है, ये 5 और 30 हम इसमें नहीं लिखेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था बुक में. सो ये फर्स्ट वाला मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी में भी ऐसे लिखा है. देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स. ओके, दैट आर, you can make this circle as it is in your book and you can then write the common numbers between here. Okay, common number multiples जो भी निकलेंगे आप बीच में ऐसे लिख सकते हैं. other method is, let me show you this here. हम 3 के नंबर्स लिख के ऐसे कॉमन लाइन बना सकते हैं, 5 के ऐसे कॉमन लाइन बना सकते हैं. then we can circle the 2 numbers which are common. after doing that we can write common multiples are 15 and 30. Similarly, second one I had done this method
बट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट सर्कल मेथड। आपको दोनों में से जो इजी लगे या जो आपका मन हो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नो नीड टू आस्क अगेन एंड अगेन। आपको ये वाले मेथड से करना है आप इस मेथड से करो, आपको सर्कल बना के करना है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। Now 40 and 20, what are the common numbers when we will write all the multiples of? So 1, 2 and 3, 40, 80 and 120. These are the common multiples. देखो दोनों में आ रहा है ये numbers. So हमें लिखने हैं first two. So common multiples first two are 40 and 80. Similarly here 24 and 3. Here also it is 24, 48, 72. And here in 3, 6, 9, so it will go till here. So it is 24 and 48. So first two common multiples are 24 and 48. Now 8 and 4. So 8, 16, 24, 32, 40. And because 8 is multiple of 4, 8 4 की टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो 8 की टेबल के नंबर्स हैं वो 4 की टेबल में आएंगे। जब भी आप ऐसा देखते हैं कि कोई भी नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, यानी कि एक नंबर दूसरे की टेबल में आता है, सो वो हमेशा बहुत सारे नंबर्स मैच करते हैं। ओके, नाउ टर्न हिट नंबर 5, 8 and 10. So 8, 40 and 10, 80. So this is like this. Next, first two common multiples are 40 and 80 in this. Now we will come to the book. Here we have some questions. अब यहाँ पे हमारे पास और भी questions हैं। क्या है? Some numbers are multiple of both 3 and 5. कुछ numbers ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों के ही यहाँ पे multiples हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। So we can say that they are common in both 3 and 5. ये भी मैंने आपको बता दिया। Think if you write the multiples common to 3 and 5 in the purple part, they will then will they still be in both red and blue color? Which is the smallest among these common multiples? अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर आप इसको पर्पल पार्ट में लिखते हो तो तभी भी क्या वो दोनों सर्कल में आ रहे हैं। देखो ये रेड सर्कल में भी आ रहा है और ये ब्लू सर्कल में भी आ रहा है। सो अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 15. सो वी विल राइट हियर 15. नाउ राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7. अब हमें यही गेम ऐसे 2 और 7 का सर्कल बना के करना पड़ेगा और फिर दोनों के कॉमन मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। सो वो करे बिना आई कैन टेल यू द कॉमन मल्टीपल्स 14, 28 and 42. अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। वॉट इज़ दैट? दैट whenever there is a number, okay, and it is connected with 2, तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा ऐसे नंबर्स देखने होंगे जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 and 0 आ रहा है। अगर ये नंबर्स ऐसे सेकंड वंस की प्लेस पे हैं तो वो पक्का 2 की टेबल में आएंगे और 2 से डिवाइड भी होंगे। सो 7 की टेबल में ऐसे जो भी नंबर हैं जिनके पीछे ये नंबर्स आ रहे हैं वो 2 के और 7 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, यही ट्रिक आप कभी भी आपको कोई नंबर दिया जाए, जैसे कि 2 and 8 दिया है, 2 and 10 दिया है, 2 and 17 दिया है, तो आपको क्या करना है? 2 को तो नहीं देखना है, आपको इनकी टेबल देखना है, जो दूसरा नंबर है उसकी टेबल देखना है और फिर इस टेबल में जितने भी नंबर हैं जिनके पीछे ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स 2 की टेबल वाले नंबर्स होते हैं। सो आप वो नंबर लिख सकते हैं और वो हमेशा कॉमन मल्टीपल निकलेंगे। ओके, नाउ टर्न द पेज। हियर देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। what is the question over here? Repeat the game by putting the multiples of 4, 6 and 5 in the circles. Now अभी उन्होंने आपको नंबर्स ज़्यादा दे दिए हैं, they are more than 2. अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं,
तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 और 6 में कॉमन होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 और 4 में कॉमन होंगे, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 और 6 में कॉमन होंगे, और ऐसे नंबर भी होंगे जो तीनों में कॉमन है, जो हम बीच में ग्रे वाले पार्ट में लिखेंगे। सो जब हम इनके नंबर्स लिखेंगे, सो सबसे पहले हम लिखेंगे जो देखना पड़ेगा ना हमें कि इन दोनों के कॉमन नंबर्स हो और इन दोनों के भी कॉमन नंबर हो। जब हम लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, पर 12 इसमें भी आता है, 12 इसकी टेबल में भी आता है ना, 6 की टेबल में, 6 2 ज़ा 12, तो हम 12 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है। फिर 6 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, लेकिन 24 और 5 की दोनों की टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 20 इस एरिया में लिखेंगे। फिर 24, तो 24 भी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 24 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और हम यहाँ पे भी के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद 6 की टेबल लिखते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, लेकिन 30 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 6 की टेबल में और 5 की टेबल में दोनों में आता है। 6 6 ज़ा 36 भी नहीं लिख सकते, 36 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 4 और 6 की टेबल में आता है, ठीक है। 36 6 7 ज़ा 42, 42, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम इसमें अगर लिखेंगे तो 48 और लिख सकते हैं, पर अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 2 लिखने चाहिए। नाउ हियर 6 और 5 की टेबल में हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 लिखते हैं ना, तो एक और ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, वो है 60। 6 10 ज़ा 60। नाउ we will check the numbers over here. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 here, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 here, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 4 की टेबल में आता है। फिर ऐसे ही करते जाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। अब एक नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वो है 60। 60 जो है वो सभी की टेबल में आता है। 4 15 ज़ा 60 होता है। 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, यानी कि ये 4 की टेबल में आता है 60। 6 की टेबल में तो ऑब्वियसली 6 10 से 60 आता ही है, और 5 की टेबल में भी 60 आता ही है, पर वो 12 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, मोर देन 10, सो 60। तीनों में एक नंबर है जो कॉमन है, वो है 60, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, इसकी हेल्प से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, नो नीड टू मेक अ होमवर्क कॉपी, ओके। मैं अगर आपको कोई ऐसे होमवर्क्स देती हूँ जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है, देन आफ्टर द वॉट एवर चैप्टर्स होमवर्क इट इज़, जब वो चैप्टर आप लिखना अपनी कॉपी में ख़त्म कर लें, उसके बाद ऊपर डालिए होमवर्क ऑफ चैप्टर। होमवर्क कौन से चैप्टर का है वो लिख के, चैप्टर का नाम डाल के, मीन्स नंबर डाल के, नो नीड टू राइट द नेम, और आप नंबर डाल के और नीचे पूरा जो आपका होमवर्क है वो आपकी फेयर कॉपी में ही सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ पजल टर्मराइन सीट, here what is happening, this is a puzzle, ये एक पज़ल है जो कि टर्मराइन सीड्स यानी कि इमली के बीज, जो कि हम जिससे खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, चीए बोलते हैं। सो दैट विद दैट देयर इज़ अ पज़ल हेयर। नाउ सुनीता टुक सम टर्मराइन इमली सीड्स, शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद दैम। यहाँ पे सुनीता ने क्या किया कि बहुत सारे इमली के बीजे लिए हैं, एंड शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद दोज
all seeds. So now what is happening here? And found that one seed was left. और उसने ये देखा कि एक सीड जो है वो बचा हुआ है. She tried making group of 6 and group of 4. Each time one seed was left. अब उसने क्या किया, उसने ये और कोशिश की कि वो 5 के बनाए पहले उसने, फिर उसने 6 के और 4 के भी बना के देखे ताकि ये जो एक बचा हुआ सीड है वो किसी ना किसी में जुड़ जाए. बट ईच टाइम वन सीड वॉज लेफ्ट. लेकिन हर बार एक सीड बचता था. वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सीड दैट सुनीता हैड. सुनीता के पास जो नंबर मतलब जितने सीड्स थे उसमें जो सबसे छोटा नंबर है, आप वो ढूंढ के बताइए कि वो नंबर क्या है. सो हाउ वी विल डू, वी विल सॉल्व इट. अब हमें उन्होंने ये बोला है कि जो उसने ग्रुप्स बनाए सुनीता ने वो कौन कौन से नंबर्स के हैं. लेट्स चेक. 5, 6 एंड 4. सो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स निकालेंगे. ठीक है, कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर्स के. अब जब इन तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो द नंबर्स वर 5, 6 एंड 4. ठीक है, इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5 है तो हमें ज़्यादा नंबर्स चूज़ नहीं करने हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि 5 जो है वो 5 की टेबल में वही नंबर आते हैं जिनके पीछे या तो 5 हो या 0 लगता हो. राइट, जैसे कि 20 है, 20 में पीछे वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो ये 5 की टेबल में आता है. सो हम वही नंबर देखेंगे इन दोनों की टेबल में जिन पे पीछे 0 या 5 आ रहा हो. सो 5 में तो आता ही है 10, 15, 5, 20, 25, 30, 35. अब हम ये देखेंगे 6 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं. तो 6 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आता है 30, 60 और फिर इसको प्लस करेंगे तो 90, 120 ये नंबर्स आते हैं. ठीक है, 5 वाले तो कोई नंबर ही नहीं आते हैं बिकॉज दीज आर इवन नंबर. जब इवन नंबर में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता है. नाउ मल्टीप्लाई टेबल में. सो नाउ 4 की टेबल में आता है 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120. इसमें भी 35, 40, 45 ऐसे 60 भी आता है, इसमें 120 भी आता है. ठीक है, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं पर जो कॉमन नंबर हैं जो तीनों की टेबल में आएंगे वो क्या होगा, वो होगा सिंपली 60. और ये 60 इनकी टेबल में भी आता है क्योंकि ये सबसे पहला नंबर है जो इनमें कॉमन हो रहा है. इसी तरीके से सेकंड कॉमन नंबर कौन सा है, 120. जो इन दोनों में आ रहा है तो वो पक्का इनमें तो आएगा ही क्योंकि हमने उसी के हिसाब से लिया है ना, 5 की टेबल के हिसाब से. ये 5 और 0 के हिसाब से लिया है. सो ये तीनों में 120 कॉमन है और 60 भी तीनों में ही कॉमन है. सो हमें ये नंबर्स मिल गए हैं कि इसमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं. अब उन्होंने ये बोला है कि जब वो लेती है तो हर बार उसका एक नंबर बचता है. तो सबसे पहला नंबर जो इसमें कॉमन आ रहा है वो है 60. दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर जो इनका कॉमन नंबर है तीनों में वो है कॉमन मल्टीपल 60. पर हर बार एक सीड बच रहा है तो वो बचा हुआ सीड हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमें नंबर मिल गया 61. ये वो नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे हम 61. ये वो नंबर है जो जितने सीड्स उसके पास हैं, यानी कि उसके पास कितने सीड्स हैं टोटल, 61 सीड्स हैं उसके पास टोटल इन कॉमन. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर नेक्स्ट इज मोर टर्मिनाइंड सीड्स. यहाँ पे अब और एक और टर्मिनाइंड सीड्स के बारे में क्वेश्चन है. यहाँ पे Amini is arranging 12 terminine seeds in the form of a different rectangle. Try to make more rectangles like this using 12 terminine seeds. यहाँ पे क्या कर रही है ये जो लड़की है, अब ये 12 terminine seeds
यूज़ करके ऐसे रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बस इसको एक और बार यहाँ पे करना है, पर वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में होना चाहिए, सेम डिज़ाइन में नहीं होना चाहिए। सो व्हेन वी विल डू, व्हाट डू वी नीड टू नो कि कैसे बन पाएंगे, है ना। सो 6, अब हम क्या करेंगे कि कितने टर्मलाइन सीड्स हैं, 12। तो इन्होंने ऐसे में 2 की लाइन जमा के और फिर 6 ऐसे में जमाया, तो टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग दिस व्हाट वी हैव टू डू नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही हमें अलग अलग टर्मलाइन सीड्स यूज़ करके, अलग अलग नंबर ऑफ टर्मलाइन सीड्स यूज़ करके ग्रिड्स बनाने हैं। फॉर सबसे पहले हम 12 का ग्रिड बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसने क्या किया है, 4 ऐसे में लिया है, 3 ऐसे में लिया है। तो हम ये कर सकते हैं 3 ऐसे में ले लें, 1 2 3, और 4 ऐसे में ले लें। तो ये हो गए एक तरीका। अब हमें ऐसे ही एक तरीका और लेना है, तो हम 6 ऐसे लेके लंबे में और 2 ऐसे में ले सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। इसी तरीके को हम ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी बन सकता है। अब यही चीज़ हमें यहाँ करनी है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 20, ये 10 और ये 10, ऐसे 20 बॉक्सेस, 20 जो टर्मलाइन सीड्स हैं वो इन बॉक्सेस में रख के उस बॉक्स को भरना है। और हम क्योंकि यहाँ पे सीड्स नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे। सो फर्स्ट एक बॉक्स बनाना है हमें, मीन्स रेक्टेंगल, जो 20 बॉक्सेस का होना चाहिए, यानी 20 सीड्स का होना चाहिए। लेट्स सी, लुक, आई हैड डन इट फॉर यू। प्लीज़ यूज़ पेंसिल कलर, डोंट यूज़ sketch colors, otherwise on the next page when you will draw it here, it will give this marks and it will look bad. So don't use the sketch pens. Now like this we have to make different type of rectangles over here. Okay, now how to find this, हम कैसे पता करें कि ये कितने कितने नंबर्स के साथ बन सकता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द पैरामीटर्स, राइट। सो ये और ये और ये दोनों नंबर्स मिलके इस पूरे पैरामीटर का हाफ होता है। ओके, सो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये और ये नंबर मिलके जो भी हमें नंबर दिया गया है, जितने भी हमें टर्मलाइन सीड्स यूज़ करने हैं, उसका आधा बने, ठीक है। या इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल नंबर मिलना चाहिए, यानी कि 20 टोटल मिलना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 20 आएगा, 1 × 20, राइट। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 ही आएगा। यानी कि अगर हम एक बॉक्स का रेक्टेंगल बनाएं जिसमें एक लेंथ 1 है, तो ऐसे हमें 20 बॉक्स कलर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है ना 1 × 20। अब सेकेंड तरीका जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, 2 × 10, तो भी आंसर 20 ही आएगा, है ना। इसके बाद और कोई तरीका है, 4 5 20 या 5 4 20, दोनों को आगे पीछे करोगे तो सेम रहेगा। सो ये 4 5 करना है और 5 4। So these are the numbers that can be multiplied with this. तो अब हमें 4 and 5 and 4 and 5 दो बार आ रहा है। We don't need to write this, हमें ये दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसी को टर्न कर देंगे। So when we will make it like this, so it will come ऊपर 5 boxes and here 4 boxes. Okay, so you do this by yourself, and after that there are some questions for you that are written here and you need to answer this, so you answer it by yourself only. Okay, make this and answer this. Now turn the page. From here I will explain you in the next video. Till then you study hard
एंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड प्रैक्टिस वेल. मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा. इट इज़ लिटिल बिट, नो इट इज़ नॉट लिटिल बिट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स आपके लिए उतना ईजी होता जाएगा. सो प्लीज़ practice these questions. Thank you.